या आप खाली करो। माननीय मंत्री जी। Respected sir, I am especially grateful to you, sir, for giving me the opportunity to make my speech here regarding this Indian Port Bill 2025. I am especially thankful to Honorable Member of Parliament Dilip Saikia ji, Shri Bharat Mutuku Nili ji, Darshan Singh Chaudhary ji, because of their kind support to this bill and for their extensive elaboration about the significance of this bill. Sir, Indian Port Bill 2025, it is a strategic intervention to reposition India's maritime sector for the 21st century. India's coastline, the economic backbone of a 4 trillion economy, has seen remarkable progress under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Sir, in the last decade, our port capacity has expanded by 87% and cargo handling has surged to a historic high of 855 million tons. We have drastically cut down ship turnaround time by nearly 49% through mechanization and digitization. The coastal shipping has increased by an astounding 180%. Sir, these are not just numbers. They are a testament to our relentless pursuit of efficiency and growth, which is why 9 of our ports now rank in the World Bank Global Container Port Performance Index. Despite this progress, sir, we are still governed by a colonial relic, the Indian Port Act of 1908. This outdated statute lacks provisions for long-term planning, modern environmental safeguard, and efficient dispute resolution. It is a legislative framework from a bygone era, unsuited for a modern, digitized maritime ecosystem. Respected sir, the Indian Port Bill 2025 is our answer to this challenge. It is the product of extensive consultation with coastal state, industry stakeholders, and the public, embodying the spirit of cooperative federalism. Sir, the bill contains 11 chapters and 85 clauses that mainly focus on optimum utilization of India's coastline by promoting integrated planning and strategic development of our port through a robust consultative framework between the state and the center. This bill introduces several forward-looking reforms. Number 1, integrated planning. It statutorily establishes the Maritime State Development Council, a recommendatory body to facilitate integrated long-term planning and data-driven decision-making across all ports. Dispute resolution. The bill introduces state-level dispute resolution committees to provide a fast, efficient, and transparent mechanism for resolving port-related disputes. Sir, then we have the environmental and safety compliance. It mandates that all ports adhere to international convention like MARPOL, requiring them to have robust plan for emergency preparedness, pollution prevention, and disaster management. Sir, digital integration. It is also the very important aspect of this particular bill. In line with our international obligation, the bill empowers the government to direct ports to establish a maritime single window system, enabling seamless electronic data exchange and improving the ease of doing business. Sir, this bill is meticulously designed to align with the best global practices. With this, sir, I request the House to pass the bill. Thank you, sir. धन्यवाद। श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, आप कृपया इस विधेयक को माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप सब लगातार इतनी देर से नारे लगा रहे हैं। आपसे अनुरोध करूंगा, काइंडली इंडियन पोर्ट बिल 2025 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। all of you, जिसमें विश्वास
आंखों में भारत के उज्जवल समुद्री भविष्य का सपना और जुबान पर जोश जो हमारे महापुरुषों की वाणी में रहा है। यह बिल केवल आप कानून बनाने के लिए आए हैं। केवल कानून नहीं है, दर्शन सिंह 21वीं सदी सुनिए, दर्शन सिंह चौधरी 21वीं सदी के भारत का समुद्री घोषणा पत्र है। इसमें परिवर्तन की अनिवार्यता इसलिए भी है कि 1908 का कानून का दौर था जब हिंदुस्तान की तटरेखाओं पर विदेशी हुकूमत का पहरा था। तब के पत्तन, तब की तकनीकी और तब की सोच सब कुछ अलग थी। आज हम ऐसे भारत में खड़े हैं जहां माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व है जो 855 मिलियन टन कार्गो अपने प्रमुख बंदरगाहों से संभालता है, जो सागरमाला के माध्यम से 5.79 लाख करोड़ की 839 परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जो राष्ट्रीय जल मार्गों को सालाना 145.5 मिलियन टन का परिवहन करता है। अब हमारे कानून भी उतने ही आधुनिक, उतने ही तेज और उतने ही दूरदर्शी होने चाहिए जितना हमारा सपना है। बिल के मुख्य स्तंभ में हमारी नई ऊर्जा और नई संरचना, जिसमें मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनी है, MSDC, केंद्र और राज्य मिलकर एक साझा दृष्टि, साझा रणनीति बनाएंगे। टैरिफ और नीतियों में एक रूपता, यही विकास की पहली शर्त है। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड का गठन हुआ है और इससे राज्य और संघीय ढांचे को मजबूत बनेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनी है जिससे विवादों के 6 माह में निपटारे का इस बिल में समाहित किया गया है और हाई कोर्ट तक अपील न्याय में पारदर्शिता और समयबद्धता तय करती है। पर्यावरण की सुरक्षा इस बिल के महत्वपूर्ण बिंदु है, जिससे पत्तन का वेस्ट रिसेप्शन, आपदा तैयारी, प्रदूषण नियंत्रण, ताकि विकास ग्रीन भी हो और क्लीन भी हो। हम अंधेरे से लड़ेंगे और उजालों की ओर बढ़ेंगे। यह बिल उतना ही उजाला लाता है। यह पारदर्शी टैरिफ, स्पष्ट नियम और मजबूत संस्थाएं नई राह दिखाती है। इसलिए समुद्री शक्ति का पुनर्जागरण 7500 किलोमीटर लंबे तट पर यह केवल समुद्री रेत नहीं है, यह अवसरों का स्वर्ण द्वार है। ये दुनिया को जुड़ा कंक्लूड कर रहा हूं सर 1 मिनट में। यह क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कमी हार नहीं होती। और इसलिए मैं निष्कर्ष तक कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल से एकीकृत दृष्टि, संघ राज्य समन्वय, निवेश का भरोसा और पर्यावरणीय संतुलन चारों में संगम देता है। हमको कदम मिलाकर चलना होगा, लक्ष्य अभी प्राप्त होगा। और इसलिए मैं इस बिल के माध्यम से इस बिल का समर्थन करता हूं और इस बिल के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि मैं भले ही मध्य प्रदेश से आता हूं, लेकिन हमारे यहाँ भी नर्मदा मैया का पावन तट है और उसमें भी पूज्य की व्यवस्था चलाकर और उस नर्मदा मैया जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है और गुजरात की भी रक्षणी है, उस मैया के संवर्धन का भी काम इसमें हो। मैं अध्यक्ष महोदय, अगर आप बोलना चाहते हो, आप सड़क माध्यम से कहना चाहता हूं धरना देंगे। इस बिल को लोकसभा का सत्र चल रहा है, एक वैश्विक महाशक्ति सत्र चल रहा बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाएंगे। एक महत्वपूर्ण कानून बन रहा है, उस विधेयक को बनाने में आपकी भूमिका है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी समुद्री सीमाएं मजबूत हुई है और इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और विपक्ष से भी अपील करता हूं कि आओ देश हित में इस बिल के समर्थन में आओ और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करो। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद अध्यक्ष मोदी, धन्यवाद। आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया इस महत्वपूर्ण बिल पे अगर आप में से कोई बोलना चाहे तो आप इस सदन को आप इसको व्यवस्थित करें, आप इसको खाली करें, मैं अलाउ करूंगा। आप कानून बनाने के लिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है और आप इस बिल में मौजूद हैं। श्याम कुमार वर्वे जी, याबे साहब, आपको मैं बोलने का अवसर दूंगा। कृपया दीपेन जी, आप इन लोगों को कहिए व्यवस्थित करें। मैं इस विधेयक पे सबको बोलने का अवसर दूंगा। विस्तार से जवाब देने के लिए मंत्री जी तैयार हैं, लेकिन आप कम से कम सदन को चलने दें। नहीं, अगर सदन में कानून बनाने की सरकार एक विधेयक लेकर के आई है, पत्तन विधेयक,
उस पर अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप कृपया वर्षा खाली करो या आप खाली करो। माननीय मंत्री जी। Respected sir, I request the House to pass the bill. Thank you, sir. माननीय सदस्यों, श्री सौगत राय जी, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, श्री के. राधाकृष्णन जी, श्रीमती प्रतिमा मंडल जी, श्री डी.एम. कातिर आनंद जी, श्री हाईबी ईडन जी, श्री अभय कुमार सिन्हा जी और श्री बेनी बेनहन जी, इन सभी माननीय सदस्यों ने विभिन्न खंडों में अपने अपने संशोधन दिए हैं। क्या कोई भी माननीय सदस्य अपने संशोधन को प्रस्तुत करना चाहते हैं? अगर नहीं तो सभा की सहमति हो तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले रहा हूं। सभा सहमत है तो विधेयक पर विचार किए जाने हेतु प्रस्ताव। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 85 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 85 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि पहली से तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। पहली से तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित मिनरल है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी भाग लीजिए। श्रीमती मालविका देवी, श्रीमती मालविका देवी। Thank you, Chairman, sir. I rise today with a heart full of hope and a vision for a stronger, more prosperous Bharat. I rise to speak in support of a landmark piece of legislation, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2025. This is a Sankalp Patra, a solemn promise and pledge to the people of our nation. It is a promise to unlock the immense treasures that lie buried in the heart of our motherland and to ensure that this wealth becomes a tool for empowerment of every single Bharatiya. Beneath our feet is a repository of our past glory and the seed of our future prosperity. But for decades, the path to this prosperity has been riddled with obstacles. Our mining sector has been held hostage to outdated laws and regulatory constraints which have restricted ease of doing business. The past governments had been unfair, and we need to look into the annals of history as they didn't do justice to our resources. On the 21st of December 1957, the Minister of Mines and Oils, K.D. Malviyaji, got the bill, introduced the Mines and Minerals Regulation and Development Bill 1957. He treated the private sector with suspicion. Major minerals such as coal, lignite, minerals, oils, iron ore were all under this, not allowed for public sector. Mines and Minerals Regulation Act 1957 was further amended in 1972, then again in 1986. But the severe regulatory regime introduced by the MMDR in 1957 and the statutory amendments of 72 and 86 continued till the early 90s. The amendments in the bills seem to perpetuate government control. Today, Modi ji's dream is different. He wants to give control out of that. He is not the one who wants to control everything. He is working towards a strengthening Bharat,
the story of Bharat and unchaining the potential of India's mines and resources. The bill is a beacon of transparency, a catalyst for growth, and a testament to our commitment to Antyodaya. The bill will empower Bharat in three fundamental ways. The first, it addresses the urgent need for critical minerals and secures their supply chains from lithium to cobalt, and other rare earth elements. These minerals drive India's economic growth story. They are indispensable to a clean future through their usage in EVs and renewable energy. It would not be far from the truth to say that these minerals will drive Bharat's Amrit Kal. The bill empowers the central government to exclusively auction these mineral blocks, ensuring standardization and reducing days, which was a big problem in the past. By fast-tracking the auction process, it will reduce our import dependence and enhance our strategic autonomy. Secondly, the technological and engineering prowess of Indian talent will not be limited to our national boundaries. The NMET, the National Mineral Exploration Trust, by allowing to fund exploration activities abroad as well. In the face of challenges to the global supply chains, this forward-looking decision by our Modi Sarkar will secure access to resources. The bill has managed to exemplify the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas. Earlier, our private sector used to hesitate about mineral exploration due to high risk of nature of the enterprise. However, by introducing this, the government has come forward with a clear message to the corporations. We stand shoulder to shoulder with you. We want to take India forward. We want to make Bharat successful. The license provides an incentive, a share in the auction value of a mining lease if a private explorer proves a resource. Kindly you conclude. The bill enshrines the principle of sustainable and inclusive development. We are not just focused on what we extract from the earth, but the district mineral funds are a revolutionary step. This is not charity, it is the right of everyone. Odisha is a land of gods. It is the land of Mahaprabhu Jagannath. It is also blessed with abundance of nature's bounty, which sadly was never used. 1 minute, sir. For the people of Kalahandi, Kyonjhar, Sundargarh, Koraput and Mayurbhanj, who still live in the immense rich iron ore deposits and bauxite deposits, this bill brings a promise of better life. The revenue generated from the transparent auction of these mines, the DM funds, think of the tribal communities and how they will develop. Kalahandi will develop. The bill is an emotional contract with the people. One last line, sir. भारत की खान, मोदी जी का मान. Thank you. से पहले देश का माइनिंग सेक्टर का स्थिति क्या थी सभी लोगों को मालूम है. सारी देश जल चुकी है. कांग्रेस के राज में माइंस के बारे में हर दिन मीडिया में हर दिन हेडलाइंस, ब्रेकिंग लाइंस में होता था. अलग अलग कोर्ट्स, अलग अलग जजमेंट भी दिया गया. सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन सिलसिला चला था. आज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में 2014 में, 2021 में, 2023 में MMDR एक्ट को 3 बार रिफॉर्म्स लाए गए. आज आपका अनुमति से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस एक्ट में 6 अमेंडमेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स आज संसद के सामने, जो माइनिंग सेक्टर के हित के लिए, जो देश की आज जो डिमांड है, माइनिंग सेक्टर के द्वारा रोजगार बढ़ना चाहिए, माइनिंग सेक्टर के द्वारा देश के क्रिटिकल मिनरल्स मिलना चाहिए. आज जो भारत में माइनिंग सेक्टर के देखते हुए आज इस बदलाव लाए गए. अध्यक्ष जी, 2015 से पहले जो पार्टी सत्ता में थे, जो माइंस का अलॉटमेंट कैसा होता था, सफेद पेपर के ऊपर कुछ लोग लिख के देते थे. आज माइंस अलॉटमेंट होता था.
आज स्थिति क्या है? 2015 से आज तक एक भी ऐसा इंसिडेंट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में एक इंसिडेंट नहीं है। पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ आज माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स लाया गया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। पहले क्या स्थिति थे? पूरे भ्रष्टाचारी होता था, पूरे माफिया होता था। आज ये स्थिति पूरा बदलाव हो गया। आज आपको मालूम है उनके राज्य में जो अलॉटमेंट किए थे लगभग 104 कोल माइंस को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर आज उसका ऑक्शन करने के लिए आदेश दिए थे। ये स्थिति थी। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आज नरेंद्र मोदी जी के आदेश में जो बदलाव आज आए हैं, आज इसकी पूरा समर्थन आज देश के जनता से है। मैं इसीलिए आज जो 6 अमेंडमेंट्स है, इस अमेंडमेंट्स को भी मैं पूरे लोगों से अनुरोध करता हूं। ये और मिनरल आज भारत का पुकार है, दुनिया में जियो पॉलिटिक्स हो रहे, क्रिटिकल मिनरल्स का डिमांड है। आज सेलफोन से लेके विमान तक, एग्रीकल्चर से लेके हर सेक्टर तक आज क्रिटिकल मिनरल का जरूरी है। डिफेंस से लेके स्पेस टेक्नोलॉजी तक डिफरेंट क्रिटिकल मिनरल्स का जरूरत है। इसलिए जो आज 6 अमेंडमेंट से आए गए, मैं आपसे मैं प्रार्थना करता हूं इस यूनानिमसली सभी लोगों से सुझाव लेकर इस जो अमेंडमेंट्स को पास करने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। मंत्री जी अपील कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी, कि सभी लोगों के सुझाव लिए जाएं, क्योंकि उन्होंने विस्तार से आज वर्तमान सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला है और उसके पूर्ववर्ती सरकार पे, और जिस तरह से उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स के विकास के लिए अगर कुछ संशोधन लेकर के आ रहे हैं, तो उस क्रिटिकल मिनरल्स जो अभी तक जिसका फ़ायदा, ये बिल स्टेट गवर्नमेंट के हित में है। जो रॉयल्टी आएगी वो आपके स्टेट को जाएगी। ये बिल माननीय मंत्री जी ला रहे हैं भारत सरकार, लेकिन इसका जो पैसा आएगा, क्रिटिकल मिनरल्स की जो परमिशन दी जाएगी, उसकी जो भी रॉयल्टी होगी वो सभी राज्यों को जाएगा। तो आप क्या राज्य में पैसा जाए इसका विरोध करेंगे? क्या राज्य में आपको अगर किसी अमेंडमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस बिल से लाभ होना है तो आप इसका विरोध कर रहे हैं? आप राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं? आपके सुझाव जानना, आपकी इस पर क्या राय है? अगर ये अमेंडमेंट जो बिल आया है, ये एक क्रिटिकल मिनरल्स के स्कोप को बढ़ाने के लिए, चाहे वो कोबाल्ट हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे वो कोल हो, उसमें जो भी क्रिटिकल मिनरल है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी भाग लीजिए। श्रीमती माला, श्री अंबिका लक्ष्मी नारायण। भारत की खान, मोदी जी का मान। थैंक यू। श्री अंबिका लक्ष्मी नारायण सामने। Thank you, Honorable Chairperson, sir. I rise to speak on the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2025. In the last 10 years under the NDA government, under the leadership of Sri Narendra Modi ji, India's mining sector has been strong and sustained growth. Since 2015, 385 mineral blocks have been auctioned with 50 mines already in production. Iron ore production more than doubled from 129 million tons in 2014-15 to record 289 million tons in 2024-25. Limestone production rose significantly from 295 million tons to 406 million tons in the same period. The sector's gross value added increased from 2.9 lakhs crores to 3.18 lakh crores between 2014 and 15 and 2023-23. This bill builds on the progress by improving transparency, accelerating approvals and empowering states, all essential steps towards India's mineral security and continued economic growth. I wish to highlight some of its most commendable projects. Clause 2, which defines and facilitates a regulated mineral exchange, is a game changer. This will bring transparency and fair price discovery, aligning us with global benchmarks like the London Metal Exchange. It eliminates the opaque practices of the past,
boost investor confidence, and ensure the public gets its due share of the mineral wealth. Class 3 allows for a one-time continuous area extension for deep-seated mineral leases. This is pragmatic approach that will significantly accelerate the exploration of production of critical minerals like lithium, cobalt, and rare earths, which are vital for our energy transition and strategic resilience. Class 6, which removes the need for prior central government approval for certain licenses, is a powerful example of cooperative freedom. By empowering states that provisions seamless, the licensing process reduces red tapeism and enables faster operationalization of mines. This is a win for both state revenue and the national goal of a mineral self-sustainability. Turning to my home state, Andhra Pradesh, while the central government has been driving progressive reforms, unfortunately our state mining sector has faced severe setbacks in the last 5 years. Kindly conclude. Please kindly conclude. The previous government suffered setbacks in the last 5 years. The previous administration's so-called freestand policy was discharges. It resulted in the widespread environmental destruction, including degradation, and left an estimate loss of near about 7,000 crores. But today, under the dynamic leadership of our new Chief Minister, our Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, things are finally turning around. We are bringing transparency back. Our new minor mineral policy 2025 will resolve nearly 1,900 pending cases through a one-time settlement scheme. By reviving the first-come, first-served policy for minor minerals, we are encouraging new... Your point is already well taken. Kindly conclude. Sir, please. Sir, in Andhra Pradesh and other states, royalty and limestone is based on mining quantities, sir. But proximity of limestone mines to cement plants makes accurate estimation difficult. One second, sir. Leading to revenue losses, sir. To address this, royalty can be changed on a pro rata basis on cement production, calculated from the limestone required to manufacture. Please kindly conclude. So this method will... kindly conclude. So one second. This method will simplify monitoring, improve transparency, and ensure the state gets the rightful revenue without relying solely at direct mine output measurements. So clinker and fly ash are sometimes mixed to make bricks. You have already spoken. Your point has been well taken. You have already spoken. Your point has been well taken. Murthy. Priyam Guru Murthy ji. Priyam Guru Murthy ji. Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak on Mines and Minerals Amendment Bill 2025. This seeks to modernize India's mining laws. The bill introduced several transformative reforms, but also raises serious concerns that must be addressed to ensure inclusive and responsible development, sir. So I'll address some few positive points. Sir, in Section 6A, the bill allows one-time expansion of mining lease areas for deep-seated minerals, sir, up to 10% for leaseholders and 30% for composite license holders, sir. This enables mining of continuous deposits deeper than 200 meters, sir, reducing operational costs and improving resource utilization, sir. Sir, Section 15B and 8th schedule, sir, strategic and critical minerals added to existing license will not incur additional charges, sir. This benefits industries essential to defense, clean energy and electronics while reducing India's import dependency in a key sector, sir. In Section 8A, 18B, the 50% scale cap on captive mines is removed, allowing full scale of surplus production. Additionally, the establishment of regulated mineral exchange will ensure transparent and efficient and competitive mineral trading, sir. Sir, some few concerns, sir. Sir,
this bill omits explicit requirements of compliance with Article 338A of 9, sir, the Panchayati Act, sir, and Forest Rights Act, sir. This undermines tribal rights and scheduled areas. ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, प्लीज काइंडली कंक्लूड. आई हैव ऑलरेडी जस्ट मेंशन. सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय जी किशन रेड्डी जी को, भारत की ग्रोथ स्टोरी में माइनिंग सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट पिलर है. सारी भारत की नहीं, सारी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में आज क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज में अध्यक्ष जी, देश में जो आज भारत लिथियम में अलग अलग सेक्टर में विदेश के ऊपर डिपेंडेंस है. भारत में क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत प्रोडक्शन कम है. मिनरल बोले तो कोल, एल्यूमिनियम ही था. आज समय समय पर जो 2015 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास किया है, आज हर एक सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे. क्योंकि आज जो मैं बताना चाहता हूं, आज जो क्रिटिकल मिनरल का जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस सभी लोग समझना चाहिए. सोलर पैनल से लेके विंड टर्मिनल तक, एग्रीकल्चर से लेके मेडिकल इक्विपमेंट तक, इलेक्ट्रिसिटी से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, सेलफोन से लेके विमान तक, डिफेंस से लेके स्पेस टेक्नोलॉजी तक, हर सेक्टर में आज क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा डिमांड है. इसके लिए हम बहुत कुछ मेहनत करना पड़ा. आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भी देश में जाते हैं, उस देश में अगर क्रिटिकल मिनरल्स है तो उस टेक्नोलॉजी के लिए, क्रिटिकल मिनरल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत प्रयास कर रहे, लोगों से बातचीत कर रहे. भारत सरकार भी प्रधानमंत्री जी के आदेश पर एक हम विदेश में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक संस्था भी हम ऑर्गेनाइज किया है. आज काबिल के नाम पर एक संस्था PSU भारत सरकार क्रिएट किया है. उसके द्वारा आज लिथियम के लिए, अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हम जाम्बिया जा रहे, अर्जेंटीना जा रहे, अलग अलग देशों में जाकर भारत सरकार का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्लान करके, MOU करके वो क्रिटिकल मिनरल्स भारत लाने के लिए प्रयास कर रहे. उतना ही नहीं है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस जगह माइनिंग होते हैं, उस माइनिंग एफेक्टेड एरिया में, माइनिंग एफेक्टेड लोगों के लिए एक DMF स्थापना किया है. DMF के द्वारा आज जिस माइनिंग एफेक्टेड एरिया में आज हेल्थ सेक्टर में भी हो, आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हो, एग्रीकल्चर में भी हो, रोजगार के विषय पर भी हो, आज काम चल रही है. आज मैं बताना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में DMF स्थापना होने के बाद 1,12,000 करोड़ रुपए अलग अलग जिलों में आज एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार है. जिला कलेक्टर के नेतृत्व में, आदरणीय MP के, आदरणीय विधायकों के, आदरणीय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस DMF का काम चल रही है. पहला कोई सोचे नहीं थे, पूरे माइनिंग लीज में पूरे राजनीतिक लोग, उनके परिवार के लोग, उनके रूलिंग पार्टी के लोग लूटते थे. आज नरेंद्र मोदी जी आने के बाद DMF का स्थापना करके पूरे विलेजेस में एफेक्टेड पीपल के लिए काम कर रहे. उतना ही नहीं अध्यक्ष जी, आज मैं बताना चाहता हूं, यूनिफॉर्म माइनिंग लिस्ट सिस्टम लाए गए. आज माइनिंग के एफेक्टेड एरिया में DMF के साथ साथ NMET के द्वारा एक्सप्लोरेशन का काम चल रहे हैं. NMET के द्वारा आज फाइनेंसिंग करके आज बड़ा कंपनी, छोटा कंपनी एफेक्टेड करते हुए आज आए. मैं इसीलिए मैं जो एक्सपेक्ट किया था, आज जो विपक्ष के पार्टी भी पूरा समर्थन करेंगे ऐसा समझा. क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट, गांव में एम्प्लॉयमेंट देने का, ट्राइबल्स का, आदिवासी का विकास के लिए, उनके जिंदगी में उजाला लाने के लिए ये माइनिंग सेक्टर में आज काम हो रहे. इसीलिए कुछ लोगों को माइनिंग सेक्टर में विश्वास नहीं है, कुछ लोगों
को भारत के सेना के ऊपर विश्वास नहीं है, कुछ लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस का विश्वास नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर विश्वास नहीं है, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, भारत के पार्लियामेंट के ऊपर विश्वास नहीं है, भारत के इलेक्शन व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, भारत के गवर्नर व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, भारत के मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, ये माइनिंग सेक्टर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उसमें माइनिंग सेक्टर में भी बहुत बड़ा रोजगार होगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर होगा। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, इस भी अमेंडमेंट्स को पूरा यूनाइटेड के साथ समर्थन करने के लिए। मुझे बहुत दुख है कि जिस पे आप डिमांड करना चाहते हैं मीना जी, और जिस पे आप चर्चा की मांग कर रहे हैं बिल में है, आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या ऑब्जर्वेशन दिया है आपको पता है। आप इस तरीके से द इंटायर नेशन इज वॉचिंग यू, व्हाट पीपल यू आर डूइंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज मेड ए ऑब्जर्वेशन ऑन दिस पर्टिकुलर SIR सब्जेक्ट, काइंडली यू मस्ट टेक ए नोट, और इस तरह से सदन का काम बाधित नहीं कर सकते। श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, प्लीज काइंडली यू कंक्लूड, आई हैव ऑलरेडी जस्ट मेंशन। सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय जी किशन रेड्डी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि खान एवं खनिज विकास अधिनियम संशोधन 2025 लाया गया है। ये एक ऐसा बिल है जिस बिल के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों की, खनन क्षेत्रों की और वन क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन क्षेत्रों के विकास के लिए 3% DMF फंड को बढ़ाया है, रॉयल्टी को 3% किया है, उसे छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, उड़ीसा को, झारखंड को, वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आता हूँ। छत्तीसगढ़ में 37% कोल और लिग्नाइट है, 22% आयरन है, 36% लाइमस्टोन है, 12% बॉक्साइट है, परंतु उसके बाद भी उस क्षेत्र में जो गरीब लोग रहते हैं उनके विकास के बारे में पहली बार किसी ने सोचा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, जी किशन रेड्डी जी ने सोचा, और इनके माध्यम से तेजी से विकास होगा। हमारा जो इतना ऐसे जो मिनरल्स है जैसे लिग्नाइट है, लिथियम है, कोबाल्ट है, दुर्लभ मृदा है, छत्तीसगढ़ में लिथियम मिला है, और वो लिथियम के माध्यम से हमारी जो बैटरीज हैं उनके लिए लिथियम मिला है, उस लिथियम के माध्यम से पूरे देश की विदेशी मुद्रा बचेगी, और हमारा जो सोलर ऊर्जा है वो भी तेजी से विकसित होगा। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करें। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात का आग्रह करना चाहूंगा कि DMF फंड का जो उपयोग है वो उन क्षेत्रों में ठीक तरीके से हो पाए, इसके लिए उनको रेगुलेटिंग इस नियम में लाया है। और पूर्व में कांग्रेस की सरकार के जमाने में कोल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसके कारण गरीब क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए, वन क्षेत्रों के विकास के लिए ये जो कानून है ये महत्वपूर्ण कानून है, मैं समर्थन करता हूं। और आप आइटम नंबर 22, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। With your permission, I rise to move for leave to introduce the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2025. प्रश्न ये है कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 23, माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave that the Insolvency and the Bankruptcy Code Bill 2025 may be referred to a select committee of the House. The names of the members of the committee may be decided by the Honorable Speaker. The terms and conditions
regarding the committee may also be decided by the Honorable Speaker. The committee may submit its report by the first day of the next session. आपने सुना कि माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या प्रस्ताव किया है? माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या प्रस्ताव किया है? टैगोर मणक्कम साहब, सुना आपने? गौरव गोगोई जी, आपने सुना? What finance minister has made a request and has passed a resolution and to seek a support from you. He wanted to send this bill to the select committee. आप select committee सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे? प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। किसके विरोध में आप ना कह रहे हैं पता है? वो विधेयक सेलेक्ट कमेटी को जा रहा हो जिला साहब, तो आप विरोध करेंगे? सेलेक्ट कमेटी को न जाए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लीजिए। चेयरमैन साहब, आज जो विपक्ष के साथियों ने जो व्यवहार किया है, हम सब ने देखा है। कागज का टुकड़ा फेंक करके चेयर की तरफ और जो गंदा नाराबाजी करके इस तरह से जिस सदन में हम लोग काम करते हैं, जिस सदन में बैठ करके देश को सेवा करते हैं, हम ओथ लेकर के इस सदन में आए हैं, उसी सदन को आप लोग आज कागज उठा करके चेयर के ऊपर फेंक करके आप लोगों ने सदन का गरिमा को गिराया है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। यह सदन सबका है, यह देश का सदन है, यह अपोजिशन पार्टी का यहाँ मनमानी से काम नहीं चलेगा। यह देश और यह सदन नियम और कानून से चलेगा। यहाँ इनका मनमानी से नहीं चलेगा। हम लोगों ने जिंदगी भर, हम लोग विपक्ष में रहा है, हम लोगों ने जिंदगी भर ऑपोजिशन में बैठ करके काम किया है। ऐसा व्यवहार हमने जिंदगी में नहीं देखा है। हम लोग भी संघर्ष करते थे, हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन हम लोग तरीके से करते थे। हम लोग कागज फाड़ के या इस तरह का नाटक बाजी करके, गंदे गंदे बातें करके, ये नारा लगा करके, कुर्सी को कागज फेंक करके आप लोगों ने जो इस पूरा सदन का गरिमा को गिराया है, ये बहुत खंडन करता हूँ और देश आपको माफ नहीं करेगा। हम लोग ने बार बार कहा है, चर्चा में हिम्मत है तो चर्चा में भाग लेना चाहिए। हम लोग हिम्मत से काम करने वाले लोग हैं। देश के सामने में हम लोग बिजनेस लेके आए हैं, बिल लेके आया है, हम लोग काम काज लेके आया है। आप लोग चर्चा में हिस्सा लेता नहीं है, अनाप समय बातें करता है, फिर बोलते हैं बोलने नहीं देते हैं। सर, मैं आखिर में मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूँ, अब भी समय है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। चर्चा में भाग लेकर के देश के लिए काम करने के लिए अभी भी वक्त है। टाइम बर्बाद मत कीजिए। हम सबको यहाँ सदन में काम करने के लिए भेजा है, हम लोगों को यहाँ बोलने के लिए भेजा है, यहाँ तोड़ फोड़ करके कागज उठा करके चेयर के ऊपर में फेंकने के लिए नहीं भेजा है। आप लोगों को एमपी चुन के भेजा है। आपके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कितना दुखी होगा आपका हरकत देख करके। मैं उनके हरकतों को खंडन करना चाहता हूँ। आज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आज जो सदन में हुआ है उसको माननीय सदस्यों ने नहीं किया है। कांग्रेस के उपनेता, आपने इशारा किया, आपने कागज दिया कि कागज को फाड़िए। कोई उपनेता इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा। कम से कम माननीय सदस्य सदन में चर्चा करना चाहते, राहुल जी सदस्य सदन में चर्चा करना चाहते, आप सदस्यों को बेल में भेजते। कांग्रेस पार्टी के उपनेता होने के बाद आप सदन से लोगों को बेल में भेज रहे हैं। आप बेल में केवल नहीं भेज रहे हैं, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है। और आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कागज फेंके, लोग चेयर पे और जिस तरह के नारे लगाएं। ये मैं उपनेता, कम से कम आप जिम्मेदार हैं। आपको अपने सदन में जहां सदस्यों को करना चाहिए वहां आप स्वयं उकसाने का काम कर रहे हैं। ये दुख का विषय है। सभा की कार्रवाई
सोमवार दिनांक 18 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कि जिस पे आप डिमांड करना चाहते हैं मीना जी, और जिस पे आप चर्चा की मांग कर रहे हैं वेल में हैं, आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या ऑब्जर्वेशन दिया है आपको पता है। आप इस तरीके से द इंटायर नेशन इज वॉचिंग यू, व्हाट पीपल यू आर डूइंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज मेड ए ऑब्जर्वेशन ऑन दिस पर्टिकुलर SIR सब्जेक्ट, काइंडली यू मस्ट टेक ए नोट। और इस तरह से सदन का काम बाधित नहीं कर सकते। अब विधेयक पर विचार किए जाने हेतु प्रस्ताव। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 12 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अब 2 से 12 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। अब मंत्री जी अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। Honorable Chairman, sir, I raise to move that the bill be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 22, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर।